Sanjay Purohit from Circuit Study Center. Now we are going to start paper number 3, question paper 3. Basic Gala. Section A. First question. Pi is a rational number. Pi is a rational number. So it is false. It is irrational number. Very first question. This is a very ordinary one. We need to explain this. 7 is one of the 0. 7 is one of the 0 of p of x. 3x square minus 17x minus 28. Let's check. 3 into 7 square minus 17 into 7 minus 28. 49 3s are 147 minus 119 minus 28 and this is 2. अगर आप देखेंगे तो 0 हो गया. जो वैल्यू इसका फैक्टर है, वैल्यू है, इसमें पुट अप करो. If you are getting 0, then it is a factor. या तो zeros of that. Number 3. Fifth term of an AP 7, 10, 13 is 19. Let's check. A5, A plus 4D. Fifth term. A आपका है 7 and what is D? Okay, 3. 4 3s are 12 and 7 19. ये भी आपका हो गया 2. First one false, rest of the 2, sorry. Second and third, 2. Number 4. Cosec A is an inverse of sin A. Is it true? Okay, absolutely true. क्योंकि sin and cosec, inverse of each other. Number 5. Each and every data has unique. अगर आप लोग देखेंगे तो it has got unique mode. Okay, not necessary. हर एक को मोड हो ऐसा जरूरी नहीं है. Not necessary. So you can say that यहाँ पे it is false. Just a minute, wait करते हैं. Now next question. Number 6. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो तो इसमें कोई मोड होता ही नहीं है. If tan theta equal to 20/21 आपको फाइंड करना है, मतलब कि sin थीटा दिया है 20/29. तो वेरी सिंपल, ये आपका ट्रायंगल ABC, इसमें आपका थीटा एंगल C अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो हाइपोटेन्यूज आपका 20 का स्क्वायर 400, ये 441, तो 841 मतलब 29. अब अगर हम लोग साइन थीटा देखेंगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका आंसर क्या है? ये भी ट्रू हो गया. मेनी ऑफ देम आर ट्रू. 6 तक हो गया. नाउ नंबर 7. डैश इज अ नंबर लाइंग बिटवीन √2 and √3. √2 की वैल्यू है 1.414 and √3 की वैल्यू है 1.73. नाउ इसकी वैल्यू यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो 4/5 लेस देन 1, 3/4 लेस देन 1, 6/5 ग्रेटर देन 1 और दूसरा है 3/2. 3/2 that is 1.5 and 1.5 is lying between 1.414 and 1.7. 6/5 no doubt greater than 1 है but it will not even 1.4. It is lying between the two value, मतलब कि आपका आंसर क्या आएगा? 1.5. It is a very good question. Question number 7. इसका ऑप्शन होगा आपका 3/2. This is the answer. Next question है number 8. नंबर 8 देखो, पॉइंट -3 4, ये -3 है और ये 4 है.
is lying in the dash quadrant. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो -3 4 lying in which quadrant? Second quadrant. Option B, second quadrant. Number 9, the pair of linear equation 2x minus 3y 4 and 4x minus 6y 7 has test solution. तो अगर आप देखेंगे a1 upon a2 जो है वो हाफ, b1 upon b2 भी क्या है हाफ, -3 by -6, but c1 upon c2 is not half, it is not half, मतलब कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, that means your solution is empty. ग्राफ पूछे तो पैरेलल, सॉल्यूशन इज एम्प्टी, मतलब कि नन, ऑप्शन में आएगा नन। 9 के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो नंबर 9 के बाद देखते हैं नंबर 10। वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 is this discriminant b equal to b square minus 4ac, 3 का square minus 4 into 1 into 2, 9 minus 8 that is 1, and your answer is 1. Next one, number 11. If you can see number 11, sum of the first n term of an k 3k 5k ऑड नंबर है, ऑड नंबर का आपको 1 3 5 का n स्क्वायर पता है, बट n के बदले यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों ने k, तो आपका आंसर आएगा n स्क्वायर k, जो कोएफिशिएंट है वो डाल देंगे n स्क्वायर k। वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है कि ऑड हो तो n स्क्वायर, इवन हो तो n into n plus 1। नंबर 12 is a very good one as well. Number 12, perpendicular distance of the origin from x axis. Very good question. This is also a very good one. Perpendicular distance of the origin, ये perpendicular distance हुआ, ये भी perpendicular distance हुआ, right? तो आपका आंसर, ये तो origin मतलब कि 0 0 हुआ, आंसर आपका आएगा 0 to यही आपका distance हुआ, distance nothing, and if there is no distance, answer is 0. Number 13, in the formula x bar equal to a plus sigma fi di upon sigma fi, आपको पूछा है di represent what? तो very simple, di equal to xi minus a, आपको पता है क्लास, फ्रीक्वेंसी, फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं xi के बाद में एक चूज करके एज्यूम नंबर, तो di equal to xi minus a, ये आपका फॉर्मूला है, एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट वन, इसके बाद P of a इक्वल टू 3/4 है, तो व्हाट इज PA बार? वेरी सिंपल, PA प्लस PA बार इक्वल टू 1, दैट मींस PA बार इक्वल टू 1 minus 3/4, 4 1 जा 4 minus 3, आपका आंसर 1/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 35 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स टेस्ट, तो एक ही बार आएगा, और 50 मार्क की टेस्ट तो 0 भी आ सकता है, मतलब कि जो भी आंसर हो नीचे टोटल में 1 डाल देने का, 100 हो तो 101, 50 हो तो 51, 70 हो तो 71, 80 हो तो 81, और जो कोई भी मार्क्स लाने का चांस 1, आपका आंसर 1/51। नंबर 16 में अगर आप लोग देखो तो प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ द फेब्रुआरी के मंथ में 5 सैटरडे या तो संडे या तो मंडे आने का चांस, लीप ईयर हो तो फेब्रुआरी में लीप ईयर हो तो 1/7, बट फेब्रुआरी में लीप ईयर ना हो तो आंसर 0। यहां पे आपका 16 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वन, नंबर 17 आपका ऐसा है,
P of x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। वेरी सिंपल, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, ऊपर हो गया बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा ही हुआ, माइनस b बाई a, नीचे c बाई a कैंसिल, माइनस माइनस आपका हो गया 7 और c आपका हो गया -3, मतलब कि आपका आंसर हुआ -7/3। नंबर 18, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Sn इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस 10n, आपको फाइंड करना है an। अगर मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊं तो 7 टू 14, एक पावर कम कर दो 14 है, और n के पावर में से n स्क्वायर का पावर कोएफिशिएंट माइनस करो, 10 माइनस 7 तो 3, आपका आंसर 14n प्लस 3 है। बट इसको मेथड से देखते हैं, a1 इक्वल टू s1, 7 प्लस 10 17, s2 देखते हैं 7 into 2 स्क्वायर प्लस 10 into 2 20 और 4 7 जा 28, 28 and 20 48, 28 आपका 20 and 28। अब a2 s2 माइनस s1 दैट इज आपका a2 हुआ 48 माइनस 17, ये आपका होगा 31, बराबर। अब आपको फाइंड क्या करना है डी, a2 माइनस a1, 31 माइनस 17 आपका आया 14। अब an की फॉर्मूला कितना लंबा है देखो, अगर 1 मार्क में आपको ये डायरेक्टली आता है तो कितना अच्छा है, नहीं आता है जिनको उनका प्रॉब्लम। a1 मतलब कि 17, n मतलब के आपका n माइनस 1 और यहाँ पे 14, तो 14n माइनस 14 प्लस 17, आपका आंसर आ गया 14n प्लस, डायरेक्ट आंसर। नंबर 19, two tangent PA and TB to the circle with center O, two tangent PA and TB with center O are inclined to each other at 70, आपको फाइंड करना है OAB। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आगे भी आपको बताया है, अगर ये पूछा है ना ये OAB तो 70 जो दिया है उसका हाफ कर दो, बट मेथड बताते हैं। अब ये 70 है तो AOB कितना होगा, AOB आपका 180 माइनस 70, ये दोनों सप्लीमेंट होंगे, ये आया 110 आया। अब आप लोगों को पता है ये दोनों रेडियस है, इन ट्रायंगल OAB में ये दो रेडियस हुआ, मतलब कि OA इक्वल टू OB, तो उसके सामने के एंगल भी कैसे होंगे, ये रेडियस इसके सामने के एंगल भी सेम, मतलब कि x प्लस 110 प्लस x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू आपका 70, तो x आपका कितना आया 35। इन शॉर्ट जब भी आपको पूछे तो ये जो एंगल दिया है उसका आपको क्या कर देने का हाफ। 19 के बाद 20 देखोगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका क्या है 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस क्या बोला है 6 सेंटीमीटर, पर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू नहीं है, 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 4 2 8, 36 into 8 pi, आपका आंसर 288 पाई। 21 के बाद 20 के बाद सॉरी, योर क्वेश्चन 21, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट मतलब कि पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल
इसका रेडियस दिया है आपको 28, तो पाई मतलब कि 22/7, ये 4 नीचे डालते हैं और रेडियस आपका दिया है 28 ये गया, तो 28 560 में 28 टू 560 में आप दूसरा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। Another question 22. Volume of each two cubes. आपको पता ही है ऐसे टू क्यूब है, each two cube 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी लेंथ आई एक क्यूब की, हाँ एक क्यूब की 5 सेंटीमीटर, एक, वैसे दो क्यूब की लेंथ बन जाएगी 5 + 5 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ वही रहेगी आपका 5, हाइट भी वही रहेगी, हाइट भी कितनी रहेगी सेम एज। तो नाउ फॉर्मूला ऑफ TSA 2 × LB + DH + LH, हर एक पेपर में ये है 10 × 5 + 5 × 5 + वापिस 10 × 5 125, तो आपका आंसर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. The given figure represent the graph. हर बार ये भी ऐसा आता है, सॉरी एग्जैक्टली टच होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब पूछा क्या है, फ्रॉम दैट स्टेट द नंबर ऑफ जीरो, ओनली 1 0 व्हेन इट इज y = p of x, और अगर गलती से उल्टा पूछते तो y को तो टच भी नहीं कर रहा है, मतलब कि आपका जीरोस हो जाता नन। 24 एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। बराबर, मतलब कि L इक्वल टू √πr। अब एरिया के बदले क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल। आई थिंक वही रेशियो है। लुक एट दिस, perimeter of square, find the ratio of their perimeters। तो ये तो आपका हो गया 4L, ये आपका हो गया 2πr। L के बदले वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, R कैंसिल, ये कैंसिल। अब आपको पता है 2√π, नीचे पाई है तो कॉन्जुगेट ले लो, √π कैंसिल, आपका आंसर आया 2:√π। इज अ गुड क्वेश्चन एज वेल। यहां पे आपका सेक्शन 1 इज ओवर। अब आज हम लोग सेक्शन बी में पूरा का पूरा सेक्शन नहीं करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन देखिए, मतलब टोटल 38 है, तो हम लोग 4-5 या तो 3-4 देख के कर देंगे। हाउ मैनी 2-digit numbers are divisible by 7। देखो 3 डिजिट और 2 डिजिट में फर्क है, क्वेश्चन पढ़ना बराबर, इसमें मगब वगैरह नहीं करने का। तो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, तो 7 तो 1 डिजिट है, सीधा 2 डिजिट नंबर में 14,
7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसा आप करते जाएंगे, 7 4 जा 28, लास्ट में 2 डिजिट नंबर वाला 14 7 जा 98, लास्ट नंबर आएगा 98। ए है आपका 14, डी है आपका 7 और ए एन है 98। वैसे तो मैंने जो आंसर बोला 14 7 जा 98, बट 14 नहीं आएगा क्योंकि उसमें 7 भी समा गया है, तो आंसर 13 ऐसा क्लियरली दिखता है, बट 2 मार्क में आपको मेथड दिखाना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 98, ये 14, ये आपका 7, ये इस तरफ गया तो 84, 12 7 जा एंड 12 प्लस 1, तो आपका आंसर, and as I mentioned that was number। नेक्स्ट वन, फॉर ए गिवन एपी 12 टर्म जो है वो आपका 4 है और 20 टर्म जो है -20 है। आपको n टर्म फाइंड करना है, n टर्म। दैट इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन, बट कुड बी द लास्ट क्वेश्चन। a 12 है, a प्लस 11b, a 20 है, a प्लस 19b, 1 and 2, माइनस माइनस प्लस, -8b इक्वल टू 24, मतलब d आया आपका -2। कोई भी एक इक्वेशन में आप ये रख दो तो -33 उस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा। अब आपको an फाइंड करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a आपका कितना है 37, n we don't know, and d minus 37 minus 3n plus 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 40 minus 3n, and that's how ये अपना आंसर। तो 26 यहां तक हमने देखे हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो 27 28, मतलब के 27 से बाकी है, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं बराबर, और बाकी का नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो आपको बताऊंगा तब। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।